Hanji class. Welcome you all in fifth lecture of Sector Motion class 9. So in last lecture we are discussing about speed, its type, uniform speed and non-uniform speed, and speed is a scalar quantity. Unit of speed is meter per second. So today we are going to discuss two special type of speeds, and I tell you one conversion of kilometer per hour to meter per second, and then we discuss 2-3 questions numericals related to speed. Okay, so I just recall, speed is how fast or how slow an object is moving, that is your speed. This is a scalar quantity. Unit is meter per second. Uniform motion, when speed is same at every instant of time, okay, or when body cover equal distance in equal interval of time. Non-uniform speed, when body cover unequal distance in unequal interval of time. Okay beta, that is your non-uniform motion. Now next I am discussing, that is beta average speed. Average speed. So what is average speed beta? Total distance traveled by a body in total interval of time. Okay na? So this is total distance traveled by total time taken, that is known as your average speed. For example, the person is over here, let us travel from point A to B and travel a distance of 10 meter for 5 seconds. For example, and then the person travel from B to point C, which is at point C, and travel a distance of 50 meter for 10 seconds. So what is the average speed of the person? Average speed is total distance by total time. Total distance is 10 plus 50, 60 meter, and total time is 10 plus 5, 15. So it is 15 4 60, 4 meter per second. So this is your average speed, total distance traveled by the body in total interval of time. That is your average speed. And remember one thing beta, the unit for average speed is also meter per second. Okay, so what is average speed beta? Total distance traveled by the body in total interval of time, that is your average speed. Similarly, one more thing, that is instantaneous speed. Instantaneous speed. If you remember your bike or motorcycle or your scooter Activa, that scooter Activa is having a meter that is known as speedometer. That is known as a speedometer. Speedometer. Okay, there are two meters, speedometer and odometer. So odometer tells us how much distance traveled by the vehicle or the car or the bike or the Activa or the scooter, whatever. Odometer tells us distance traveled by the vehicle. ठीक है ना? And speedometer tells us what is the speed of that vehicle at particular instant of time. किसी टाइम पर व्हीकल की कितनी स्पीड है, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे स्पीडोमीटर. तो कैसे लिखेंगे? स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है ना? तो स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर. जैसे मान लो एक्टिवा चला रहे हैं और एकदम से हमने एक्टिवा के मीटर की तरफ देखा और देखा भाई 40 पे हुई है. इट मींस एट दैट टाइम स्पीड ऑफ आवर व्हीकल इज 40 मीटर. थोड़ी देर बाद देखा तो 50 पे चली गई. इट मींस एट दैट टाइम द स्पीड ऑफ व्हीकल इज 50 किलोमीटर पर आवर होता है. सॉरी, वहां पर किलोमीटर पर आवर होता है. So at that time the speed is 50 km per hour. So speed of a vehicle at a particular instant of time, उसको बोला जाता है instantaneous speed. ठीक है? And average speed क्या होता है बेटा? Average speed होता है total distance traveled by the vehicle by the total time
taken, ठीक है ना. Speed of instantaneous speed is also measured in meter per second and average speed is also measured in meter per second. हाँ, ओडोमीटर ये बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है and speedometer tells us what is the speed of the vehicle at a particular instant of time. ठीक है. अब मैं एक कन्वर्जन बता देता हूँ आपको. कन्वर्जन बिटवीन किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, जो व्हीकल्स में काम आएगा आपकी. इरेज कर दें इसे. एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर. ठीक है. चलिए देखो, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर आवर, इसको अच्छे से इरेज कर दूंगा. किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. ठीक है. देखिए, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. तो बेटा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो और आवर को सेकेंड में. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ठीक है जी. एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड. हो गया. ठीक है. So these two zero cancel. 2 5s are 10 and 2 18s are 36. It means 1 kilometer by 1 hour is equal to 5 by 18 meter per second. ठीक है. मैं क्वेश्चन देखो जैसे कराता हूँ आपको. क्वेश्चन है convert 108 किलोमीटर पर आवर, convert 108 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड. इसको आपने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. सो 108 दिस इज किलोमीटर पर आवर. तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे. इसको 5 बाई 18 से 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. तो सॉल्व कर लो इसको. कितना आएगा? 9 5 4 6 30 मीटर पर सेकेंड. दैट्स इट. ठीक है ना. यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले जाना है तो 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो. रिवर्स जैसे देखो इसी एग्जांपल में 30 मीटर पर सेकंड है आपके पास एंड यू वांट इट इनटू किलोमीटर पर आवर. तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18 बाई 5 से. रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका. तो ये हो जाएगा 30 इंटू 18 बाई 5. ठीक है. 5 6 30 एंड 18 6 108 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इट मींस अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है देन 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई एंड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई. दैट्स इट. इतना सिंपल है. ठीक है. तो इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट करना है. ठीक है. चलिए एक और एग्जांपल मैं करा देता हूँ. जैसे क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक बस ट्रेवल कर रही है. चलो मैं इसे इरेज कर दूं पहले. देखिए, a bus travel a distance of 120 किलोमीटर with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना. ये देखो, ये आपके पास एक वोल्वो बस है. वोल्वो. ठीक है ना. एंड दिस बस ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर. कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 120 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल कर रही है. ठीक है ना. एंड देन रिटर्न विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. फिर वापस आ गई. नाउ द बस इज रिटर्न विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. तो बेटा जितना गई है उतना ही वापस आई होगी. इसका मतलब जाने वक्त की डिस्टेंस कितनी है इसकी? 120 किलोमीटर है. तो वापसी भी कितनी होगी? सेम 120 किलोमीटर होगी. ठीक है. तो हमें निकालना है कैलकुलेट एवरेज स्पीड. क्या निकालना है हमें? एवरेज स्पीड निकालना है. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस तो पता लग गया बेटा. 120 फॉर आउटगोइंग एंड 120 फॉर रिटर्निंग. तो कितना हो गया? 240 हो गया. 140 120 प्लस 120. अब टाइम निकालना पड़ेगा. टाइम क्या होगा? पहले वाला देखो, टोटल डिस्टेंस मैं लिख ही देता हूँ. टोटल डिस्टेंस था आपका, एक मिनट देखो, टोटल डिस्टेंस हो गया 120 प्लस 120. टोटल टाइम T1 प्लस T2. ठीक है ना. इन दोनों टाइम्स को हम ऐड करेंगे.
तो पहले ही इसके लिए टाइम निकाल दो। t1 कितना होगा, टाइम क्या होता है बेटा, फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, रेसिप्रोकल। टाइम यहाँ चला गया, स्पीड यहाँ आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 120, टाइम कितना है 40, सॉरी स्पीड कितनी है 40, डिस्टेंस 120 और टाइम है आपका 40। तो ये कितना हो गया 3 आवर। कितना टाइम लग गया इसको, 3 आवर लग गया। इसी तरह से दूसरा टाइम निकालोगे तो वो कितना आएगा बेटा, डिस्टेंस को उसमें भी उसने 120 ही ट्रेवल किया है और टाइम स्पीड कितनी है 30, तो ये हो जाएगा 4 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, t1 3 आवर ये वाला, t2 4 आवर ये वाला, तो टोटल टाइम हो गया 3 + 4 7। तो यहाँ इसको सॉल्व कर दीजिए, 120 + 120 हो जाएगा 240/7, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन में आएगा 7 3 21, 3 फ्रैक्शन में आएगा 7 3 21, 3 और 3 के बाद 7 चौक 28, 7 4 28, 2 7 2 34.2 समथिंग आएगा किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा आपका 34.2। हाँ अगर आप चाहो तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, वो यहीं से कर लो, इसी को 240/7, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से, ये अब किस में आ जाएगा आपका आंसर मीटर पर सेकंड में। इसको